Good morning, children. Welcome to class 2 computers. Children, this is our computer book, IT Planet, My Bits and Bytes. Computer series 2. Children, we were doing chapter 4 of this book. We have completed chapter and we had done book exercise also. So today we are going to start chapter 5. So children, before starting chapter 5, we will revise book exercise of chapter 4 and then we'll start chapter 5. So children, let us start chapter 4 book exercise. So children, we had done question number A. Take the correct answer. So children, here we have first one. Keys are used to type words. As we know, children, keys on the keyboard are used for typing words. Which keys? These are alphabet keys. Here we have 4 options. A is alphabet, B is function, C is shift. Now, so which keys are used for typing the words? Alphabet keys are used for typing the words. So we will tick in front of option A, that is alphabet. Now, second one, children, the dash keys are used to move the cursor. Children, as we have studied in the chapter, arrow keys, there are 4 arrow keys which are used for moving the cursor in upward, downward, left and right direction. These 4 keys are called arrow keys and these are used for moving the cursor up and down and left and right. So arrow keys are used to move the cursor. Now, third one, there are dash enter keys available on a keyboard. So children, how many enter keys are there on the keyboard? As we have studied in the chapter, we have 2 enter keys. One is present with the alphabet key just beside the alphabet key and the other one is present on the numeric keypad. So children, we have 2 types of number keys. One is number keys and the other is numeric keypad. The first one is beside the alphabet key and the second one is beside the present with the numeric keypad. So we have 2 keypads. Here, we have 2 enter keys. Now, the long key on the keyboard is called space bar. As we know, space bar is the longest key present on the keyboard. So children, एक बार हम इसको फिर पढ़ते हैं. Alphabet keys है, first वाला है. Alphabet keys are used to type words. That is alphabet. The keys are used to move the cursor is the arrow key. There are 2 enter keys available on a keyboard. Then fourth one is the longest key on the keyboard is space bar. So children, come to the next question. We have next question, fill in the blanks. Children, here we have fill in the blanks. In fill in the blanks, some words are given as a clue. We are going to complete the words. So here we have missing letters. We are going to do this fill in the blanks in the form of missing letters. Some of the letters of the words which has to be written in the blank is given. बच्चों, यहाँ पे हमें जो blank दिया हुआ है इसमें कुछ words as a clue दिए हुए हैं. फिर बाकी जो इन clue से we are going to find out what we will write and also will read the statement which are given beside the blank. Keys are used to type words on the computer. As we know, alphabet keys are used for typing words on the computer. So let us see, is it alphabet key will match the words which are given. So first letter is A, second is L. So here it is written L and then is B, then H is given, A, B, E, T, alphabet and keys already given. So it is true. We will write here alphabet key A. So you will write here. First let us scroll. Here we have pen A. A will be capital as it is the first letter of the sentence. Alpha, B, H, A, B, E, T. Alphabet keys are used to type words. Now children, second one is dash keys are used to type numbers. Which keys are used to type number? So NU,
it is number. NUM, yes, it is matching with the clue also. NUMBER. हमें जो क्लू यहाँ दिया है उससे भी ये मैच कर रहा है. सो आवर आंसर इज राइट. नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स. हम अल्फ़ाबेट की को यूज़ करते हैं वर्ड्स को टाइप करने के लिए, और नंबर कीज़ को यूज़ करते हैं नंबर्स को टाइप करने के लिए. नाउ चिल्ड्रन, थर्ड वन इज डैश की इज़ यूज्ड टू टाइप capital or small letter. As we know, caps lock key is used to type capital or small letters. Let us see whether it is true or not. So CAPSLOCK. Yes, the clues goes correct. So the answer is caps lock key is used to type capital or small letter. Now children, fourth one, कर्सर इज़ अ ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन. जैसा कि हमने बोला, जो कर्सर होता है एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम लिख रहे होते हैं या जहाँ पे कुछ भी एंटर कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक डैश करके लाइन होता है जो हमेशा ब्लिंक करता है, इसको हम कर्सर कहते हैं. और इसी को देख करके हमको पता चलता है कि कहाँ एग्जैक्टली हमारी पोजिशन, इट टेल्स अस अबाउट द पोजिशन ऑफ द कर्सर. सो यू विल राइट हियर कर्सर, CURSOR. कर्सर is a blinking line on the screen. Now 5, delete key is used to erase anything typed on the right side of the cursor. So यहाँ पे आप लिखेंगे DELETE. delete key is used to erase anything typed on the right side of the cursor. 6, space bar gives a blank space to the right of the character. अब हमने पढ़ा है कि जब भी हमको स्पेस देना है तो हम स्पेस बार यूज़ करते हैं, एंड इट गिव्स अ blank space towards the right side of the character. So you will write here SPACE space BAR, bar, space bar. So यह है space bar. Now children, let us revise. Alphabet keys are used to type words on the computer. Alphabet keys are used to write words on the computer. So you will write here alphabet. Number keys are used to type numbers. Then we have caps lock key is used to type capital or small letters. Cursor is a blinking line on the screen. Delete key is used to erase anything typed on the right side of the cursor. अब ये है space bar, gives a blank space to the right of the character. So this is all children, you will read and learn. Now coming to the next question children, here we have question answers. Let us do question answers. Name any two types of keys on the keyboard. Children, we have studied about many types of keys on the keyboards. Any one you can write, any two you can write here. One is alphabet key or number key, or you can write delete key, space bar key. कोई भी दो आप लिख सकते हो जिनके बारे में हमने पढ़ा है. Function keys also you can write. So और symbol keys, तो किसी के भी दो keys के बारे में you can write in this answer. Second one is children, which key is used to move the cursor to the next line. As we know, if you want to move to the next line, we press enter key. So second answer के लिए you will write enter key. Name the longest key on the keyboard. Longest key is space bar. So you will write in answer 3, you will write space bar. Name the two keys used to erase text. टेक्स्ट को अगर इरेज करना है तो वी यूज़ टू कीज़, दैट इज़ वन इज़ बैक स्पेस एंड द अदर इज़ डिलीट. इफ़ यू प्रेस बैक स्पेस इट विल डिलीट टुवर्ड्स द right side of it will delete towards the left side of the cursor, and if you want to delete towards right side of the cursor you will press delete key. Now next question is true false children. Write T for true and F for false statement. So there are 10 alphabet keys on the keyboard. How many alphabet keys are there on the keyboard? Is it 10 alphabet keys? No children, we have 26 alphabet keys. So this statement is wrong. पहला statement है आपका 10 alphabets keyboard में होते हैं. No,
हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे कीज़ भी 26 ही होते हैं, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. सो यू विल राइट हियर टी. आप यहाँ पे टी लिखेंगे. फिर है एंटर की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. एज वी नो द स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. You can type your age using the number key. Yes, we can write our age using the number key. हम number key से अपनी age लिख सकते हैं. So ये true है, ये वाला true है. Now delete key is used to erase the text. अगर आपको text को erase करना है तो आप delete key दबाएंगे, तो ये हो जाएगा true. फिर उसके बाद है caps lock is used to give space. This is false. Caps lock is used for writing the letter in text in capital letter. So ये भी wrong हो गया है, तो false लिखेंगे. Now write the names of the following keys in the given space. अब पहला key can you identify children? Yes, it is space bar. तो यहाँ पे आप लिखेंगे SPACE space bar BAR bar. ये हो गया आपका space bar. उसके बाद है अल्फ़ाबेट की. दूसरा वाला है अल्फ़ाबेट की, इसे हम अल्फ़ाबेट की बोलते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जम्बल्ड लेटर्स. सो चिल्ड्रन वी हैव जम्बल्ड लेटर्स हियर. rearrange the following jumbled words. First one is number keys. NUMBER. Number keys. 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 First one is number keys. Then we have second one, we have delete key. DELETE. Delete. KEY. Keys. Then we have space bar. S. थर्ड वाला है space bar. Space bar. ये हो गया space bar. Now application based question. जैसा कि हम जानते हैं after reading the chapter, whatever we have learned we apply in our life. This is called application based question. So here is a question based on application where we can use our knowledge. Raj wants to type his name in capital letters, but he does not know the right key for it. He wants your help in it. Help him. So children, as we know, for writing anything in the capital letter you have to press caps lock. तो caps lock को एक बार हम दबाएंगे तो it will allow us to write with capital letter, and फिर दोबारा दबाएंगे तो it again comes to the small letter. So इस तरह से we will, before typing the name, Raj will press caps lock for writing his name with capital letter. So this is your application as you have studied this in this chapter. So you are applying by telling your friend how to write name in capital letter. So children, this is all with the chapter. Let us start our next chapter, that is chapter. So children, this is our chapter 5, monitor. In this chapter we are going to read about monitor. Topics covered. Children, in this chapter we are going to cover the following topics, that is monitor. First topic is monitor. Then we have monitor, then features of monitor, screen, size of monitor, buttons on the monitor, tilt and swivel base, types of monitor, uses of monitor. These are the topics which we are going to include in this chapter or cover in this chapter. So children, let us meet Lappy. Hi children, you already know monitor is one of the main parts of a computer. So let us learn more about it. So children, Lappy tells us, hi children, you already know monitor is one of the main parts of a computer. So let
us learn more about it. So children, as we have already studied in our previous chapter when we were studying about different types of different parts of computer, as we know, when some main parts of the computer join together, it forms computer system. What does it form? It forms computer system. So this computer system includes the following parts, that is monitor, keyboard, CPU and mouse. Without these parts children, the computer cannot perform even a single वर्क. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें हमने क्या बोला था कि अगर कुछ पार्ट्स जो हैं मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और सीपीयू है, अगर ये 4 पार्ट्स नहीं रहेंगे कंप्यूटर में, चारों में से एक भी अगर पार्ट नहीं है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी सिंगल वर्क ऑल्सो. तो इसीलिए ये सारे पार्ट्स जो कंप्यूटर के हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है. और कंप्यूटर सिस्टम तभी बनता है जब ये चारों पार्ट होते हैं, और जब कंप्यूटर सिस्टम पूरा होता है देन ओनली इट इज़ एबल टू परफॉर्म एनी वर्क. सो हियर in our previous chapter we have studied about keyboard, one of the important part of the computer or one of the important part of the computer system, and this is the second part, that is monitor. Monitor is another important part of the computer without which computer cannot perform even a single work. बिना इसके कंप्यूटर एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकता. So जैसा कि मैंने बताया, this monitor resembles a TV screen. जैसा कि हम जिस टीवी पे अपने घर में, टीवी सबके घर में टीवी होता है बेटा बच्चों, तो हम जिस टीवी पे पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कार्टून देखते हैं और उसके बाद हम सीरियल देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, तो ये वाला जो टेलीविज़न स्क्रीन होता है वो एकदम मॉनिटर को रिजेंबल करता है, दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं. तो दिस कंप्यूटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड मॉनिटर. इसी स्क्रीन को हम कहते हैं मॉनिटर. यू कैन सी दिस इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड दिस स्क्रीन इज़ कॉल्ड मॉनिटर विच रिजेंबल्स अ television screen. A monitor is very important part of a computer. It is used to display text, whatever you are typing, whatever text you are typing on the computer, या in the computer, it is displayed on the screen. वो स्क्रीन पे डिस्प्लेड होता है. पिक्चर्स अगर आप देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो या फिर पिक्चर्स डिस्प्ले कर रहे हो या वीडियोस है, सब कुछ आपके स्क्रीन पे प्ले करेगा. स्क्रीन को हम मॉनिटर कहते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. नाउ एज आई टोल्ड यू, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न. पहले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न. जो मॉनिटर होता है टेलीविज़न की तरह दिखता है. Whatever you do on the computer, you get final result on the monitor. तो बच्चों हम कीबोर्ड से कोई भी चीज़ फीड करते हैं, ठीक है. हमको अगर कुछ भी करना है तो हम अपने कीबोर्ड से उसमें कंप्यूटर में फीड करते हैं. फिर वो प्रोसेस होता है CPU से. प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. मैंने कितनी बार आपको बोला है कि जो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं वो सब कुछ कहाँ डिस्प्ले होता है, वो मॉनिटर एज अ फाइनल रिजल्ट, वो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है एज अ फाइनल रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट के तौर पे वो सब कुछ मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है. सो दिस इज़ चिल्ड्रन all about the monitor, and also let us read some more things about the monitor. The information displayed on the monitor is called the soft copy. जो information हमारे monitor पे display होती है वो soft copy कहलाती है. हम उसको चाहे जब भी चाहे उसमें कुछ changes कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको soft copy कहते हैं. अगर हमको कुछ erase करना है, कुछ add करना है, कुछ हमको edit करना है, मतलब मिटा करके उसकी जगह कुछ और लिखना है, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं. जैसे कि अगर एक बार हम हार्ड कॉपी निकालेंगे और उसका जस्ट अपोजिट होता है हार्ड कॉपी. सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, दो टाइप्स के कॉपीज़ हमारे पास होते हैं. हार्ड कॉपी में क्या है कि हम उसको एक बार प्रिंट आउट से प्रिंट करके निकाल लेंगे तो हम फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. अगर कोई गलती हो गई तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. लेकिन सॉफ्ट कॉपी हम रखते हैं अपने कंप्यूटर में और इसको जब चाहे हम उसको मॉडिफाई करके या एडिट करके वापस उसको यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ इसीलिए हम इसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. मॉनिटर इज़ यूज्ड
द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो आई होप सबको सॉफ्ट कॉपी समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने बताया, जो सॉफ्ट कॉपी हमारे कंप्यूटर जो भी हम काम करते हैं उसका सॉफ्ट कॉपी जो होता है उसको हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम जब चाहें इसमें चेंजेस कर सकते हैं, फिर वापस उसका नया कॉपी निकाल सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए हम इसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं क्योंकि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देन मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हम मॉनिटर को का दूसरा नाम होता है VDU। V का मतलब विजुअल, D का मतलब डिस्प्ले, यूनिट, तो हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज VDU। द फुल फॉर्म ऑफ VDU इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और जो आपके का मॉनिटर होता है इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो हम मॉनिटर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सो लेट अस रिवाइज चिल्ड्रन व्हाट वी read just now. We read about the monitor. Lappy says, let us know more about the monitor. Monitor is a very important part of the computer. जैसा कि बच्चों मैंने बताया पहले भी चैप्टर में जब हमने पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर पढ़ा था, तब भी मैंने बोला कि देर आर सम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब मिल करके बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम। जब तक कंप्यूटर का पूरा सिस्टम नहीं रहेगा वो कोई भी काम नहीं कर सकेगा। जैसे कि कीबोर्ड से हम किसी चीज़ को फीड करते हैं, फिर उसके बाद CPU उसको प्रोसेस करता है, मतलब उस काम को करता है, और उसके बाद जो मॉनिटर है उसको डिस्प्ले करता है, और माउस को भी हम यूज़ करके बहुत सारे काम करते हैं। तो जब तक ये चारों पार्ट ऑफ द कंप्यूटर नहीं होंगे वी वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क। तो इसीलिए मॉनिटर इज़ वन ऑफ दीज पार्ट्स, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट। हम मॉनिटर को यूज़ करते हैं टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए, या वीडियोस को डिस्प्ले करने के लिए। अगर हमको फिल्म देखना है तो मॉनिटर पे ही देखेंगे, हमें मॉनिटर पे ही दिखाई देगा। अगर पिक्चर्स हम देख रहे हैं कोई, तो वो भी हमको मॉनिटर पे ही दिखाई देगा। तो इस तरह से मॉनिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। मॉनिटर कैसा दिखता है? टेलीविजन की तरह दिखता है। वॉट एवर यू डू ऑन अ कंप्यूटर यू गेट द फाइनल रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है हम उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। वी कॉल इट एज सॉफ्ट कॉपी बिकॉज इट कैन बी एडिटेड, इरेज्ड और मॉडिफाइड, और हम उसे जब चाहे तब मॉडिफाई कर सकते हैं, जब चाहे तब उसको एडिट कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज VDU। V मीन्स विजुअल, D मीन्स डिस्प्ले, U मीन्स यूनिट। मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नाउ फीचर्स ऑफ अ मॉनिटर। फीचर का मतलब क्या होता है? द मॉनिटर हैज़ अ स्क्रीन विच इज़ द डिस्प्ले एरिया ऑफ द monitor. For example, when you move the mouse pointer also appears moving on the screen of the monitor. अगर आप माउस को भी मूव करोगे तो वो भी उसके ऊपर डिस्प्ले होता है, और we can see the pointer moving from one place to another which is controlled by the mouse. तो जो स्क्रीन होता है उसका मेन पर्पस होता है कि वो एरिया जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो डिस्प्ले करता है। तो जैसे कि अगर हम माउस को मूव करेंगे तो भी हमको पॉइंटर इधर से उधर मूव करता हुआ या डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देता है। सो मॉनिटर हैज़ अ स्क्रीन विच इज़ द डिस्प्ले एरिया ऑफ द मॉनिटर. So the monitor has a screen which is the display area of the monitor. For example, when you move the mouse, the mouse pointer also appears moving on the screen of the monitor. मॉनिटर के स्क्रीन पे आपको मूव करता हुआ दिखाई दे जाएगा. उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई साइज़ ऑफ अ मॉनिटर. जो मॉनिटर का साइज़ होता है इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट साइजेस. जैसे कि चिल्ड्रन एज वी नो कि जब टीवी का जो स्क्रीन होता है वो भी हमको हर साइज़ में मिले, छोटा बड़ा डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ और आपको कहाँ रखना है या आपकी चॉइस के ऊपर है. तो इसी तरह यहाँ पे मॉनिटर के भी अलग अलग साइजेस होते हैं. वी हैव 14 इंचेस, वी हैव 15 इंचेस, 17 इंचेस, 22 इंचेस और 26 इंचेस. तो मॉनिटर्स आर ऑल्सो फाउंड इन वेरिंग साइज.
द साइज़ ऑफ द मॉनिटर डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज़। जो मॉनिटर का साइज़ है उसको यूज़, जैसा कि मैंने बोला कि कहाँ उसको यूज़ करना है, किस हिसाब से यूज़ करना है, उसका काम क्या है, उस हिसाब से हम उसके साइज़ को भी चेंज करते रहते हैं और उसके साइज़ यूज़ के हिसाब से अलग अलग साइज़ यूज़ करते हैं। नाउ बटन्स ऑन अ मॉनिटर, जैसे कि मैंने बताया कि मॉनिटर जो होता है उस पर भी बटन होते हैं। बटन, मॉनिटर हैज़ अ पावर बटन विच इज़ यूज टू स्विच इट ऑन और ऑफ। जैसे कि हमको स्विच CPU में एक बटन होता है, फिर मॉनिटर को स्विच ऑन करने ऑफ करने के लिए भी एक बटन होता है। इट ऑल्सो हैज़ वेरियस बटन्स टू एडजस्ट द ब्राइटनेस, contrast and the other features of the images displayed on the monitor। अगर आपको स्क्रीन को ब्राइट करना है, लाइट करना है, जो भी करना है, कंट्रास्ट भी हम आराम से चेंज कर सकते हैं। सो हियर आर सम ऑफ द कंट्रास्ट विच आर शोन। आप देख लो कहाँ डिस्प्ले होता है ये और कहाँ पे ये शो करता है। दीज आर द switches which are used to set the contrast of the monitor. Now next one children, tilt and the swivel base। tilt and swivel base का मतलब होता है it allows you to adjust the angle। हम अपने कंफर्ट के हिसाब से जो कंप्यूटर होता है उसका मॉनिटर जो होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंगल उसका अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं टिल्ट या स्विवल। तो इन सम मॉनिटर्स यू कैन रोटेट द स्क्रीन ऑल्सो, और कुछ में आप स्क्रीन को भी रोटेट कर सकते हो, एंगल भी सेट कर सकते हो, स्क्रीन को भी रोटेट करते हो। आपने देखा होगा कभी हम अपने हिसाब से कंप्यूटर के स्क्रीन को इधर उधर घुमाते रहते हैं या रोटेट करते रहते हैं, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद भी है टाइप्स ऑफ मॉनिटर। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक कैथोड रे ट्यूब होता है जिसको CRT हम कहते हैं। वन इज कैथोड रे ट्यूब विच इज़ नोन एज CRT, और दूसरा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे हम LCD कहते हैं। नाउअडेज सो चिल्ड्रन CRT जो पहले हमारे पास भारी सा स्क्रीन होता मॉनिटर होता था उसे हम CRT कहते हैं। ये थोड़ा भारी सा होता था, देखने में भी हैवी सा होता है, लेकिन आजकल हमारे पास ट्रिम एंड ट्रिम वाला स्मार्ट सा मॉनिटर आ रहा है जिसे हम LCD कहते हैं। एकदम जैसे टेलीविज़न में पहले हमें बड़ा सा डिब्बा जैसा टेलीविज़न मिलता था, वो वाला टेलीविज़न अब हम नहीं यूज़ करते बल्कि हम LCD वाला करते हैं। उसी तरह मॉनिटर की तरह ही TV की तरह ही मॉनिटर भी बदल गया है। पहले CRT आता था जो कि भारी भरकम होता था, अब आता है स्मार्ट सा पतला वाला जिसे हम LCD कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। CRT मॉनिटर बल्कि भी होता था और हैवी भी होता था, वेरस LCD मॉनिटर इज़ थिन एंड लाइट और देख के भी स्मार्ट लगता है, हमें उठाने बिठाने या डिस्प्लेस करने में भी आसानी होती है। नाउ उसके बाद चिल्ड्रन यूजेस ऑफ मॉनिटर। अ मॉनिटर इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले ड्राइंग, वर्ड्स, गेम्स, कार्टून्स। चिल्ड्रन ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। एक बार एक तरह से हम रिवाइज कर रहे हैं कि जब हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि मॉनिटर इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले ड्राइंग, वर्ड्स, गेम्स, कार्टून्स एट्सेट्रा। हम मॉनिटर पे ये सारी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका ड्राइंग, कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड मशीन, गेम्स, और उसके बाद कार्टून्स को भी हम शो कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। सो चिल्ड्रन दिस इज ऑल विद द चैप्टर। So let us once again read what we revise what we read in this chapter. Just now we studied कि first thing about the monitor is that कि monitor is a important part of the computer. It is used to display text, pictures and videos. A monitor looks like a television. Monitor television की तरह दिखता है. Whatever you do on a computer, you get the final result on the monitor. मतलब जो भी हम कंप्यूटर पे कहते हैं वो सब कुछ हमको किस पे दिखाई देता है, मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है. और जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मॉनिटर पे दिखाई देती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. वाई वी कॉल इट सॉफ्ट कॉपी? बिकॉज इट कैन बी एडिटेड और इट कैन बी मॉडिफाइड. हम उसमें चेंजेस आराम से कर सकते हैं, इसलिए हम उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. उसके बाद मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज VDU.
मॉनिटर का आज हमने दूसरा नाम पढ़ा जिसे हम वीडियो कहते हैं। वीडियो का मतलब होता है वी का विजुअल, डी का डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नाउ फिर उसके बाद हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के फीचर्स क्या हो गए चिल्ड्रन कि मॉनिटर हैज़ अ स्क्रीन, मॉनिटर में एक स्क्रीन होता है विच इज़ नोन एज डिस्प्ले एरिया, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो डिस्प्ले एरिया होता है उसको हम मॉनिटर कहते हैं। और फॉर एग्जांपल व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर ऑल्सो अपीयर्स मूविंग ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। हम जो भी करते हैं वो सब कुछ हमको मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखाई देता है। और यहाँ तक कि अगर आप माउस पॉइंटर को भी मूव करते हो तो वो भी हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है। साइज़ ऑफ मॉनिटर, अब मॉनिटर का साइज़ भी वेरिंग होता है, मतलब अलग अलग साइज़ में मॉनिटर पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास टीवी स्क्रीन अलग अलग साइजेस में पाई जाती है। वी कैन सी हियर पिक्चर ऑल्सो, दीज आर द डिफरेंट साइजेस ऑफ द मॉनिटर। सबसे पहला हो गया 14 इंचेस, देन वी हैव 15 इंचेस, 22 इंचेस, 26 इंचेस एट्सेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन the use of the monitor we have different types of different sizes of monitor. अब बटन ऑन अ मॉनिटर हमने पढ़ा, जैसा कि हमारे पास स्विच ऑन, पावर स्विच ऑन के लिए वी हैव 2 बटन, एक ऑन के लिए और एक ऑफ के लिए। उसके बाद देयर आर सम बटन्स विच आर यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड फीचर्स ऑफ द इमेजेस डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। जो भी इमेज हमें डिस्प्ले होता है मॉनिटर में उसके फीचर्स को सेट करना हो या फिर कंट्रास्ट को सेट करना हो या फिर ब्राइटनेस सेट करना हो, जैसे कि टीवी में हम सेट करते हैं वैसे ही मॉनिटर में भी कीज़ होते हैं जो इन सब कामों के लिए यूज़ होते हैं। दीज आर द कीज़ which are used for setting the features, brightness and contrast of the monitor. उसके बाद टिल्ट और स्विवल, जैसा कि मैंने बताया कि इसका स्क्रीन पूरी तरह से रोटेट भी हम कर सकते हैं और हम टिल्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जिधर भी हम टिल्ट करना चाहें यानी झुकाना चाहें उसको झुका सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसे हम टिल्ट एंड स्विवल बेस कहते हैं। उसके बाद आखिरी चीज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। Basically we have studied here about 2 types of types. First one is LCD and the other one is cathode ray tube, CRT and LCD. CRT जो होता है भारी वाला होता है, जिसमें जो भारी भरकम होता है, हैवी होता है, बल्कि होता है, सेम एज टेलीविज़न वी यूज्ड टू हैव प्रीवियसली। जैसा हमारे पास भारी सा डिब्बा की तरह बड़ा सा टेलीविज़न होता था पहले, और उसी तरह से हमारे पास पहले मॉनिटर भी होता था। लेकिन आजकल हमारे पास LCD मॉनिटर आता है जो कि लाइट इन वेट होता है और स्लिम होता है, जिससे कि हमें रखने में भी इसे आसानी रहती है। थिन होता है या स्लिम होता है और रखने में भी हमें आसानी होती है और इसको डिस्प्लेस करने में, इधर से उधर उठाने में भी आसानी रहती है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ LCD एंड CRT स्क्रीन्स। और यूज़ तो आप जानते ही हो, द यूज़ ऑफ मॉनिटर इज़ टू शो डिस्प्ले द ड्राइंग्स यू डू ऑन द computer, then computer is the words you write is also displayed, or the text you write, that is also displayed, and the games we play, that is also displayed, and the cartoons or the movies which we watch, that is also displayed. So children, this is all about the chapter. With this we have completed the chapter. We come to the end of the video, children. In next video we will revise the chapter once again and proceed to the book exercise. So children, till then, thank you.